Hello students, welcome to another lecture of PKTU of a subject Industrial Pharmacy, subject code BP502T. Myself Payal Kesharwani, working as an assistant professor at Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. So in this video, this is lecture number 8 of BCS classification. This will be covering BCS classification. So in the last video, we have discussed about the chemical analysis. In this, we have seen hydrolysis, oxidation, photolysis and racemization. In this video, we will be discussing about BCS classification. So we will be covering definition of BCS, factors affecting BCS classification, solubility, permeability, dissolution and biopharmaceutical classification system for drugs. First is in this slide biopharmaceutical classification. It has started or it was first developed in 1995 by Amidon. Amidon was a scientist who discovered, who identified, who invented, you can say, BCS classification, and he has helped to understand the properties of the drug, how the property of the drug can be enhanced, how the absorption of the drug can be enhanced, and how efficiently the drug can be made bioavailable. So these studies was done by the scientist and he has given us BCS classification. So to save the time and fast screening, fast screening is required. Why? Because you want to develop your drug into a dosage form, and that dosage form should be bioavailable. So we have to study the solubility of the drug, we have to study the permeability of the drug. So these two parameters are considered mostly in BCS classification, and focusing this we can save a time. We can classify a drug into different classes, whether it is highly soluble or highly permeable, and accordingly we can design a formulation. So we know that which class a drug belongs. So this will help to enhance the process of development of dosage form. Drug substances are classified on the basis of solubility and permeability, as we have seen. So how we will define biopharmaceutical classification, BCS classification? So this is a scientific framework. It is a scientific framework for classifying the drug substance. यहाँ पे हम ड्रग सब्सटेंस को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्वस सॉल्युबिलिटी एंड इंटेस्टाइनल परमिएबिलिटी. इसमें जो दो मेन पैरामीटर हम फोकस करते हैं वो है सॉल्युबिलिटी एंड दूसरा है परमिएबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट. वाई सॉल्युबिलिटी एंड परमिएबिलिटी? बिकॉज हमारे दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं. पहला होता है डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन के लिए एक्वस सॉल्युबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिसोल्यूशन से आपके ड्रग का क्या होता है? रिलीज होता है. योर ड्रग गेट रिलीज्ड. सो दिस इज नंबर वन. नंबर टू इज परमिएबिलिटी. परमिएबिलिटी से क्या होता है? आपका ड्रग एब्जॉर्ब होता है. आपके ड्रग को अगर एब्जॉर्ब कराना है इन द ब्लड, तो ड्रग शुड हैव द परमिएबिलिटी, बिकॉज जो आपकी मेम्ब्रेन होती है जहां से एब्जॉर्प्शन होता है, दैट इज लिपिड इन नेचर. तो ये जो ड्रग होती है, ये जो मेम्ब्रेन होती है, दैट इज लिपिड इन नेचर. दैट इज व्हाई आपके जो ड्रग की परमिएबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये जो परमिएबिलिटी पैरामीटर है, ये हेल्प करता है आपके ड्रग को परमिनेट होने के लिए, परमिएट होके एब्जॉर्ब होने के लिए और एब्जॉर्ब होके ब्लड में पहुंचने के लिए. सो दैट इज व्हाई permeability and dissolution are important parameter which we have to refer while we formulate a dosage form.
Next is factor affecting BCS classification. So what are the different factors we have to see during formulation of BCS classification? So first is solubility, second is permeability, and next is dissolution. Solubility, why it is important? Because जो आपका ड्रग है उसको solubilize होना ज़रूरी है. जो भी आप सॉल्वेंट आप यूज करोगे, सॉल्वेंट में आपका ड्रग प्रेजेंट रहता है, ड्रग शुड बी कंप्लीटली सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट. एंड इस सॉल्वेंट को जब आप इनटेक करते हो, वेदर इट इज एक्वस सॉल्वेंट और एनी अदर सॉल्वेंट, तो इस सॉल्वेंट को जब आप इनटेक करते हो तो इनटेक करने के बाद वो सॉल्युबलाइज स्टेट में होती है और सॉल्युबलाइज स्टेट में डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब हो जाती है और एब्जॉर्ब होके ब्लड में पहुंच जाती है. तो जब भी वो ब्लड में रिलीज होती है तो ब्लड में रिलीज होके साइट ऑफ एक्शन में वो इजीली पहुंच सकती है. नेक्स्ट इज परमिएबिलिटी. परमिएबिलिटी में हमने डिस्कस किया था, एज वी हैव सीन कि परमिएबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इससे हमें लिपोफिलिक नेचर ऑफ द ड्रग पता चलता है. लिपोफिलिक, वेदर आर ड्रग इज लिपोफिलिक और नॉट. अगर लिपोफिलिक है तो हमारा ड्रग इजीली परमिएबल हो जाएगा. अगर लिपोफिलिक नहीं है तो वी हैव टू यूज डिफरेंट मेजर्स सो दैट आवर ड्रग्स बिकम लिपोफिलिक इन नेचर and it gets permeate, it passes the membrane, mucosal membrane, and reaches the blood. Next is dissolution. Dissolution is important for the release of the drug. तो हमें अपने ड्रग को रिलीज कराना है. वी नीड टू रिलीज अ ड्रग फ्रॉम द डोजेस फॉर्म. अगर ये टैबलेट फॉर्म में है तो हमें टैबलेट से रिलीज कराना है, ग्रैन्यूल्स फॉर्म में है तो ग्रैन्यूल से रिलीज कराना है, इफ इट इज इन द कैप्सूल फॉर्म तो हमें कैप्सूल से रिलीज कराना है. तो हमें डिफरेंट फॉर्म्स से अपने ड्रग को रिलीज कराना होता है. सो दैट इज वाई वी स्टडी द डिसोल्यूशन. नेक्स्ट, first is solubility. Solubility is the maximum amount of solute dissolved in a given solvent at standard condition of temperature and pH. तो स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच में कितना अमाउंट ऑफ ड्रग डिसॉल्व होगा आपके पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग डिसॉल्व होगा पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी. तो ये जो सॉल्युबिलिटी होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू बी इन द सोल्यूशन फॉर्म, टू बी डिसॉल्व. तो ड्रग को आपको सॉल्युबलाइज कराना बहुत जरूरी होता है. तो इसके लिए हायर सिंगल यूनिट डोज इज कंप्लीटली सॉल्युबल. मतलब हायर, अब अपने ड्रग को कब बोलोगे कि इट इज कंप्लीटली सॉल्युबल? जब हायर सिंगल डोज, उस पर्टिकुलर ड्रग का हायर सिंगल डोज इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन 250 ml ऑफ वाटर एट pH 1 to 6.8 and temperature is 37 degrees Celsius, that is a body temperature. तो आप कहोगे कि आपके ड्रग completely soluble है. तो हम हमेशा किसी भी ड्रग की जब भी solubility टेस्टिंग करते हैं तो हम हाईएस्ट डोज जो उसका होता है उसको हम 250 ml में डिसॉल्व कराते हैं at 1 to 6.8 pH and 37 degree Celsius. Next is permeability. Permeability of the drug is the ability of the drug to pass the biological membrane which is lipophilic, as we have discussed in the previous slide कि जो हमारी म्यूकोसल membrane होती है वो लिपोफिलिक in nature होती है. तो इस membrane को क्रॉस करके डिफ्यूज करता है ड्रग और ब्लड में रीच होता है. तो बेसिकली जो बैरियर यहाँ पे प्रेजेंट है वो बैरियर क्या है? आपका लिपोइडल मेम्ब्रेन, म्यूकोसल मेम्ब्रेन, जो आपके ड्रग को परमिएट करके ब्लड में रीच होना है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर फॉर द ड्रग टू रीच द ब्लड. So permeability is indirectly based on the extent of absorption of a drug substance. तो कितने एक्सटेंट में आपका ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है, आपके ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी क्या है, तो ये सारे पैरामीटर आपके परमेबिलिटी से डिसाइड होते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय मास बैलेंस, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी और ह्यूमन इंटेस्टाइनल परफ्यूजन स्टडीज. तो आपको जब भी परमेबिलिटी स्टडी परफॉर्म करनी होती है तो परमेबिलिटी स्टडीज आप मास बैलेंस से डिटरमाइन कर सकते हो, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी उससे डिटरमाइन कर सकते हो, एंड जो इंटेस्टाइनल परफ्यूजन स्टडीज होती है उससे भी आप
उससे आप बेसिकली जो परमेबिलिटी स्टडी है उसे डिफाइन कर सकते हो। तो जो इंटेस्टाइनल परफ्यूजन स्टडीज़ है ये हमेशा बताती है कि आपके ड्रग की परमेबिलिटी क्या है, ये हमें ड्रग की परमेबिलिटी को स्टडी करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन. Dissolution is the process in which the solid substance solubilizes in given solvent, that is mass transfer from solid to liquid phase at a particular rate. तो यहाँ पे जो मेजर कंपोनेंट रोल प्ले करता है दैट इज अ रेट. सो एट व्हाट रेट योर ड्रग इज डिसॉल्व्ड और योर ड्रग इज रिलीज फ्रॉम द डोजेज फॉर्म इज अ डिसोल्यूशन. So it is a process in which the solid substance solubilizes into the solvent at a particular rate. तो आप डिसोल्यूशन स्टडीज डिफरेंट डिसोल्यूशन अपैरेटस से करते हो. दिस डिसोल्यूशन अपैरेटस इज गिवन इन IP also and USP also. Different pharmacopoeia में इसके different types के specification हैं. So you can refer either of the specification of the pharmacopoeia and accordingly you can choose the dissolution studies for performing. For example, you can select the USP apparatus 1. तो इसमें आप at 100 RPM अपने ड्रग का डिसोल्यूशन कर सकते हैं. And also you can also choose USP apparatus 2. In this you can choose 50 RPM for the drug dissolution. डिफरेंट डिसोल्यूशन मीडिया आप यूज कर सकते हो. अगर अपने स्टमक में ड्रग को रिलीज कराना है देन द correct media is HCl, that is 0.1 normal HCl. This you can use and you can make your drug dissolve in it. When you want to see your dissolution into the intestine, so in that case you can use the intestinal media, that is you can choose pH buffer 4.5 or you can choose pH buffer 6.8. So either of the buffer you can choose. So normally we use stimulated fluids, either gastric stimulated fluid or intestinal stimulated fluid. So gastric stimulated fluid it mimics the condition of the stomach, and intestinal stimulated fluid mimics the condition of the intestine. So we can like this calculate different dissolution of the doses form. Next is triple trial rationale. Triple trial rationale is, your rationale is that your solubility should be high, your permeability should be high and it should be rapidly dissolved. So इसको इंश्योर करने के लिए आपको ड्रग की solubility properly चेक करना होगा प्री फॉर्मुलेशन स्टेप्स में. प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में you need to study thoroughly the solubility of the drug to obtain the high solubility, so that your dissolution step is not hindered, your absorption step is not hindered. Next is high permeability. High permeability में आप इंश्योर करोगे कि आपकी ड्रग कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए, बिकॉज परमिबिलिटी स्टेप से ही आपका एब्जॉर्प्शन होता है. तो एब्जॉर्प्शन को आपको जब कंट्रोल करना है तो आपको हाईली परमेबल ड्रग यूज करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज रैपिड डिसोल्यूशन. रैपिड डिसोल्यूशन एंश्योर्स दैट गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग इज द रेट लिमिटिंग स्टेप. आपके ड्रग की गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग करानी है तो इट शुड बी आपके ड्रग को रिलीज कराना है डोजेस फॉर्म से, सो डैट आपके स्टमक से वो जल्दी से एम्प्टी होके ब्लड में पहुंच जाए और वहां से साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाए. तो इसके लिए आपका ड्रग हाईली सॉल्युबल होना चाहिए, हाईली डिसॉल्व होना चाहिए. डिफरेंट मेथड्स है जिससे आपका ड्रग डिसॉल्व होता है. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में वो थ्योरीज पढ़ी थी, थ्योरीज ऑफ डिसोल्यूशन, जिससे आपके ड्रग की डिसोल्यूशन आपके बॉडी में होता है. तो डिफरेंट मेथड से डिसोल्यूशन हो सकता है, जिससे आप डिफाइन कर सकते हो कि वेदर इट इज अ रेट लिमिटिंग स्टेप और नॉट. नेक्स्ट इज biopharmaceutical classification of the drug. So here we will see that according to BCS classification, there are 4 classes: class 1, class 2, class 3 and class 4, and it is based upon solubility and permeability. So you can see in class 1 it is highly soluble and it is highly permeable. High solubility and high permeability is there. For example is
omeprazole. नेक्स्ट इज क्लास 2. क्लास 2 में आप देख रहे हो इट इज हैविंग लो सॉलिबिलिटी. सॉलिबिलिटी इसकी क्या है? लो है. देन इसकी परमेबिलिटी क्या है? परमेबिलिटी हाई है. सॉलिबिलिटी लो है बट परमेबिलिटी इसकी हाई है. एग्जाम्पल इज नेफिडिपिन. नेक्स्ट इज क्लास 3. क्लास 3 में इसकी हाई सॉलिबिलिटी है बट इसकी परमेबिलिटी क्या हो जाती है? लो हो जाती है. एग्जाम्पल इज मेटफॉर्मिन. क्लास 4 ड्रग्स जिसमें लो सॉलिबिलिटी एंड लो परमेबिलिटी है. एग्जाम्पल इज टेक्सोल. सो यू नीड टू डू लॉट ऑफ मॉडिफिकेशन इन क्लास 4 ड्रग्स टू मेक इट dissolve, to make it permeable. To different modifications such as it can be done in different techniques like novel drug delivery system or different salt formation so that it is easily dissolved and it is easily permeable from the membrane and reaches to the blood. So example of this class 4 drug is Taxol. Class 1 drug, this is the ideal for the oral route. जब भी आप oral route prepare करते हो, so class 1 drugs are the ideal drug because it is rapidly dissolved, it is rapidly absorbed and it shows rapid therapeutic action. जैसे immediate release tablet होती है, आपने उसको दिया, immediately वो dissolve हो जाएगी, immediately permeate हो जाएगी and it will show its effect immediately. So this class 1 drug shows every parameter immediately: rapid absorption, rapid dissolution, rapid permeability and its bioavailability is also very high. तो जो भी class 1 drugs होते हैं हमेशा उसकी bioavailability high रहती है. So bioavailability is not the problem for the class 1 drugs. It can be easily formulated into any dosage form and it can be easily permeable to the across the membrane to the blood and it effectively reaches to the site of action. Example is metoprolol, propranolol, diltiazem. So these are the example of the class 1 drugs. Next is class 2 drugs. Class 2 drugs are oral route drugs. It has low solubility but permeability is high. In the last slides we have seen इसमें जो solubility है वो low होती है but जो permeability होती है वो high होती है. तो dissolution here is a rate limiting step. So you have to take different measures to make your drug soluble so that it gets easily dissolved and this step can be made enhanced by different modification. So drug is absorbed rapidly but dissolve slowly. ड्रग डिजोल्व स्लोली होता है, एब्जॉर्ब रैपिडली होती है. तो इसमें जो बायो अवेलेबिलिटी होती है इस कंट्रोल्ड फॉर्म. इसमें जो डोजेस फॉर्म का रिलीज रेट होता है वो क्या होता है? कंट्रोल्ड फॉर्म में होता है. तो कंट्रोल्ड वे में क्योंकि आपका डिसोल्यूशन क्या है? रेट लिमिटिंग स्टेप. तो उसमें से ड्रग जो है वो स्लोली रिलीज होती है. स्लोली रिलीज होती है तो यू कैन कंट्रोल द बायो अवेलेबिलिटी. अगर इफ यू वांट मोर बायो अवेलेबिलिटी you can do lot of modification in that and you can make your drug bioavailable. But if you want less bioavailability of the drug, so you can make your drug accordingly. You can make the modification accordingly. Example is nifedipine and naproxen. So this is the example of class 2 drugs. Next is class 3 drugs. Class 3 drugs are also for the oral route administration. So class 3 drugs in this, it is having high solubility but the permeability is low. Solubility इसकी क्या होती है? High होती है but इसकी जो permeability होती है ये low होती है. तो soluble आपका ड्रग हो जाएगा but इसको permeable कराने के लिए you need to do modification. So drug absorbance is limited. अगर परमेबिलिटी लो है तो जो रेट लिमिटिंग स्टेप है वो क्या हो जाता है? एब्जॉर्बेंस. तो इसमें जो एब्जॉर्बेंस होता है वो क्या होता है? डिक्रीज्ड हो जाता है, रेट लिमिटिंग हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है. तो आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन करके उसे इनहेंस्ड करना होगा. डिसोल्यूशन रैपिडली होता है. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे सॉल्युबिलिटी हाई है तो डिसोल्यूशन भी हाई होता है. तो यहाँ पे जो बायो अवेलेबिलिटी है वो इनकम्प्लीट होती है इफ द ड्रग इज नॉट रिलीज और डिजोल्व इन द एब्जॉर्प्शन विंडो. तो अगर आपको ड्रग को बायो अवेलेबल कराना है
तो उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज कराना होगा। भले ही आपका ड्रग यहाँ पे सॉल्युबलाइज हो जाए, आपका ड्रग यहाँ पे सॉल्युबलाइज हो जाए, बट जब तक वो परमिएट नहीं होगा, सपोज आपने यहाँ पे 100 mg ड्रग दिया है, 100 mg ड्रग आपका यहाँ पे सॉल्युबलाइज हो गया, बट यहाँ पे अगर परमिएबल नहीं होगा तो लेस परमिएबिलिटी के कारण उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो क्या होगी, इनकम्प्लीट होगी, या तो निग्लिजिबल होगी या वेरी लेस होगी। तो यू हैव टू टेक सर्टन पैरामीटर्स, सर्टन डिफरेंट पैरामीटर्स सो डैट आप उसकी बायोअवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर सको। फॉर एग्जाम्पल सिमेटिडीन, metformin and insulin. These are the example of class 3 drugs. Next is class 4 drug. Class 4 drugs are poorly absorbed by oral administration. हम इसको poorly absorbed क्यों बोल रहे हैं? Because इसकी जो solubility है that is also decreased, permeability is also decreased. तो this is very difficult. ये क्या होते हैं? This is very difficult to formulate. क्यों? बिकॉज सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज्ड है, परमेबिलिटी भी डिक्रीज है, तो आप मॉडिफिकेशन करके सॉल्युबल भी बनाना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करके उसे परमिएबल भी बनाना पड़ेगा। बोथ सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी इसमें एक लिमिटेशन बन जाता है, इट बिकम्स अ लिमिटेशन। सो उसका जो डिसोल्यूशन रेट है वो भी लेस रहेगा, क्योंकि ड्रग आपकी डिसॉल्व ही नहीं हो रही है, तो यू हैव अ वेरी लो डिसोल्यूशन रेट। नेक्स्ट इसका स्लो थेरेप्यूटिक एक्शन मिलेगा, बिकॉज आपकी ड्रग वेरी स्लोली डिसॉल्व हो रही है, वेरी स्लोली परमिएट होगी, सो इसका जो थेरेप्यूटिक एक्शन होगा वेरी स्लोली मिलेगा। तो इन केस यू वांट अ फास्ट एक्शन, इमीडिएट एक्शन ऑफ अ ड्रग, सो क्लास 4 ड्रग्स का कभी आपको फास्ट या इमीडिएट एक्शन नहीं मिलेगा। यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ मॉडिफिकेशन टू गेट इट। An alternative route of administration is needed for these drugs. तो alternate route में आप इसको parenterally दे सकते हो, आप इसको parenteral फॉर्म में बना सकते हो, जैसे इंट्रावेनस इंजेक्शन, आप डायरेक्टली इसको ब्लड में इंजेक्ट कर दो, तो इसमें सॉल्युबिलिटी इशू भी नहीं रहेगा एंड परमेबिलिटी इशू भी नहीं रहेगा, और ड्रग आपकी डायरेक्टली ब्लड में जाके साइट ऑफ एक्शन में जाके एक्ट कर सकती है। तो ओरल रूट से आप काफी मुश्किल से इसे इफेक्टिवली डिलीवर कर पाओगे। तो आपको सारे ऑल्टरनेटिव्स देखने होंगे कि किस तरीके से आप अपने ड्रग को यहाँ पे इफिशिएंटली डिलीवर कर सको। एग्जाम्पल है इसका टेक्सोल, क्लोरथियाजोल, सेफिजमीन एंड ट्राईहाइड्रेट। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द क्लास 4 ड्रग्स। दिस इज अ डायग्राम विच शोज दैट कि आपका जो ड्रग है अगर लेस सॉल्युबल है, लेस परमिएबल है, तो हाउ यू कैन इम्प्रूव। सो दिस इज अ क्लास 4 ड्रग विच इज हैविंग अ पुअर सॉल्युबिलिटी एंड पुअर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी भी यहाँ पे डिक्रीज्ड है एंड सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज्ड है, तो इसमें लो बायोअवेलेबिलिटी रहेगी, इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो भी कैसी रहेगी, लो रहेगी। तो हमें इम्प्रूव्ड बायोअवेलेबिलिटी अगर करना है तो वी नीड टू यूज डिफरेंट मॉडिफिकेशन। वो मॉडिफिकेशन हम किस किस फॉर्म में कर सकते हैं, हम लिपिड बेस्ड फॉर्मुलेशन बना सकते हैं। तो लिपिड बेस्ड फॉर्मुलेशन जैसे लाइपोसोम, वेसिकुलर फॉर्मेशन, कोलॉइडोसोम्स, हम डिफरेंट लिपॉइडल बेस्ड फॉर्मुलेशन बना रहे हैं सो डैट वो इजिली लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करे और लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इजिली आपके ब्लड में अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट हम करेंगे क्रिस्टल इंजीनियरिंग। हम क्रिस्टल फॉर्म में ड्रग को करेंगे जिससे उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाए। हम पॉलीमेरिक नैनो कैरियर्स फॉर्म करेंगे कि नैनो कैरियर्स आपके कैरियर्स के फॉर्म में होते हैं जिसमें ड्रग आपका अंदर एनकैप्सुलेटेड फॉर्म में रहता है, एनकैप्सुलेटेड फॉर्म में रहता है, जिससे आपका ड्रग इजीली कैरी हो जाता है। हम सेल्फ इमल्सिफाइंग सॉलिड डिस्पर्शन बना सकते हैं, ये सॉल्युबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। देन हम डिफरेंट लिपिड सॉलिड टेक्नोलॉजी भी बना सकते हैं। इन टेक्नोलॉजी से हमारी जो सॉल्युबिलिटी है बेसिकली क्या होगी, इम्प्रूव्ड हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी बेसिकली हमारी इम्प्रूव्ड हो जाएगी। तो हम डिफरेंट टेक्निक्स से अपनी सॉल्युबिलिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी परमेबिलिटी को भी इंक्रीज कर देते हैं। फॉर दिस वी हैव टू डू अ प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज से हम ये डिटरमाइन करेंगे कि हमारे ड्रग किस क्लास को बिलोंग करती है, क्लास 1, क्लास 2,
क्लास 3 या क्लास 4 एंड अकॉर्डिंगली हम फॉर्मुलेशन करते टाइम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर सकते हैं उसके मॉडिफिकेशन के लिए, सो डैट जो भी उसके डिफिशियंसी पैरामीटर हैं, जैसे उसकी सॉल्युबिलिटी लेस है या परमेबिलिटी लेस है या दोनों लेस है, बायो अवेलेबिलिटी इतनी अचीव नहीं हो रही है, तो ये सारे पैरामीटर्स वी कैन इजीली अचीव बाय अडॉप्टिंग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज. Next is there is also class 5 drug. So these are the one which does not come under previous BCS classification. जो 1995 में BCS classification was developed, तो उसमें ये include नहीं हुआ था. It consists of drugs whose absorption is limited due to poor stability in the GIT. There are many drugs which are unstable in GIT. They get degrade in the presence of GIT. So it is very difficult for these kind of drug to deliver through the GIT route. For example, imiprazole shows gastric instability. Then complexation in GIT lumen. Some drugs shows complexation in GIT lumen, and some of the drugs undergo first pass metabolism due to enzymes such as intestinal enzyme, hepatic enzyme और microbials. So enzyme जो intestinal enzyme है, जैसे पेप्टाइड ड्रग्स होते हैं, वो हाइड्रोलिसिस वो डिग्रेडेशन शो करते हैं, डिग्रेडेशन अंडरगो करते हैं. तो इस टाइप के ड्रग्स को जीआईटी से डिलीवर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. तो इस टाइप के ड्रग को जब भी हमें जीआईटी से डिलीवर करना है, तो वी यूज टू यूज डिफरेंट स्ट्रैटेजीज. जैसे हम उसमें पॉलीमर की कोटिंग कर देते हैं, वी यूज द पॉलीमर कोटिंग सो दैट आपका जो ड्रग है वो डायरेक्टली आपके जीआईटी से कांटेक्ट में नहीं आए, जिससे वो डिग्रेड ना हो. या फिर हम इसे वेसिकल के अंदर एनकैप्सुलेट कर देते हैं, नैनो कैरियर्स के फॉर्म में डिलीवर कर देते हैं, डिफरेंट एनएलसीज फॉर्म कर देते हैं, दैट इज नैनो स्ट्रक्चर्ड. देन एसएलएन फॉर्म कर सकते हैं, सॉलिड लिपिड नैनो कैरियर्स. तो ऐसे हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करके क्लास 5 ड्रग्स को डिलीवर कर सकते हैं. मोरओवर हम इसको टॉपिकली भी दे सकते हैं एंड पैरेंटरली भी दे सकते हैं. देन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो हमें अडॉप्ट करना होता है जब हम बोलते हैं हाईली सॉल्युबल, दैट मीन्स आपका जो हाईएस्ट डोज है वो 250 ml वाटर में डिजॉल्व हो जाना चाहिए एट pH 1 to 6.5 at pH 1 to 7.5 and volume is 1 glass full. When we will say it is highly permeable, जब आपका जो ड्रग है when the extent of absorption in human is more than 90%, आपका ड्रग more than 90% permeate हो रहा है, then you will say it as a highly permeable. आप rapidly dissolving drug कब बोलोगे, जब आपका more than 85% ड्रग जो कि क्लेम्ड है आपके लेबल में वो डिसॉल्व हो जाएगा within 30 minutes using USP apparatus 1 and USP apparatus 2 in a volume more than 900 ml, either HCl या buffer solution. तो इस तरीके से आप rapidly dissolving अपने ड्रग को बोल सकते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट क्राइटेरियाज ऑन द बेसिस ऑफ विच यू विल से योर ड्रग इज हाईली सॉल्युबल, हाईली परमिएबल और रैपिडली डिसॉल्विंग. Significance of BSc classification. So first significant is to predict the in vivo performance of the drug. मीन्स आपका ड्रग बॉडी के अंदर जाके कैसे बिहेव करेगा, तो आप GCS क्लासिफिकेशन से डिटरमाइन कर सकते हो आपका हाईली परमिएबल है या हाईली सॉल्युबल है. तो इस तरीके से आप डिफरेंट कंसिडरेशन कर सकते हो. बायोवेवर इज ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ BCS क्लासिफिकेशन. जो साइंटिस्ट है उनको कुछ रिसर्च वर्क करना है तो उसके लिए भी जो BCS क्लासिफिकेशन का डेटा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो रेगुलेटरी एंड बायो इक्विवेलेंट स्टडीज के लिए भी BCS क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वील हैव अ क्विक summary of the slide.